ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡਸ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ 10th ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ 2nd ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ, ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ 10 ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ, a body is moving in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 15 meter per second. Find its angular speed. So ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਹੈ 15 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਨੇ, CGS ਯੂਨਿਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ, ਇਹ ਕਾਚ ਆ SI ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਟਰ SI 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 0.5 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਬੋਡੀ A to B 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ V। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਬੋਡੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਟਰੈਕ। ਇੱਧਰ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, that angle covered is called angular displacement, and this rate of change of angular displacement is called angular speed or angular velocity, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, V = R ਓਮੇਗਾ ਜਾਂ ਓਮੇਗਾ R ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਆਰਕਸ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ। ਆ ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ L ਇਜ਼ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਿਸ ਆਰਕ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੀਟਾ = L/R। L ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, R ਥੀਟਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਾਥ, ਇਹ ਐਂਗਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, R ਥੀਟਾ ਆਇਆ ਯਾਦ। ਇਹ ਨਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ V ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ R ਓਮੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਆ ਗਿਆ ਸੀ R ਐਲਫਾ। ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ R ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਸ V = R ਓਮੇਗਾ V/R। ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 15 V/R, ਹਾਂਜੀ R ਕਿੰਨਾ ਸਰ 0.5। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ 10 ਉੱਪਰ ਆ 30 ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। 30 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੋ ਯਾਦ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਸਨ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਾਹ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, SI ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਦਾ ਰੇਡੀਅਨ, ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਓਮੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
कुछ भी नहीं हैगा, फार्मूले याद होन, वैल्यूज़ देख लो तो वैल्यूज़ फिल कर दो तो साडा रिलेशन आ जाता। चलो असीं प्रैक्टिस करते हैं। नैक्सट देखिए, क्वेश्चन सेम रह गया, वही प्रॉब्लम साढ़े को हैगी है। बॉडी मूव कर रही है इन सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, स्पीड कितनी है दी, कितनी है स्पीड 15 मीटर पर सैकेंड। पर उन्हें हुण की पूछ लिया सानू, कहंदा व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। सिर्फ अगर इन्ना ही लिखा है कि टाइम पीरियड की चीज़ है, की सी टाइम पीरियड, करो याद की कहंदा सी, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पूरा चक्कर लगाने कितना टाइम लगेगा। ਹੁਣ देखो ये बारे की ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ टाइम टू कंप्लीट सर्कल की गिवन सानू, फिर नोट कर लिए असी गिवन सानू एस केस की है रेडियस, असी इनू कच चेंज करता सी मीटर 0.5 मीटर। फिर वेलोसिटी गिवन सानू कितनी साढ़े को आ चुकी है 15 मीटर पर सैकेंड, ये भी आ गई है। नैक्सट साडा की काम रह गया साढ़े को हुण की रहिंदा हैगा, असी फाइंड करना है टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो की आएगा, देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, अगर आप सर्कल च जा रहे हैं, इहदा रेडियस आर है, बॉडी इत्थों शुरू होके दोबारा चल के इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए, दैट इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। जो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना हैगा, एस केस डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ दैट इज 2 पाई आर। डिस्टेंस साढ़े को आ चुका, वेलोसिटी है एस वेलोसिटी ना, ये जी वेलोसिटी है एस के की स्पीड हैगी, ए स्पीड ना बॉडी मूव करती है, स्पीड है डिस्टेंस है की रिलेशन आपस इन्हों का v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, देयरफॉर एस कितना आ गया v इंटू टी। पर असीं फाइंड करना वी हैव टू फाइंड टी, टाइम लभना, टाइम पीरियड कितना। तो टी टाइम टेकन है ना इस एस अपॉन वी। तो देखो एस कितना साढ़े कोल 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन आप वैल्यू कर दी थे एंड वी के ना 15, तो वैल्यू फिल कर दो 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है 0.5 डिवाइड बाई 15। और सॉल्व कर ली थोड़ा 222 बच्चे 10 तो जो डिप्लोमा चाहते साढ़े कोल थोड़ा कैलकुलेशन स्लो होंगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने स्पीड बढ़ जाती है। हाँ जी 5 इतने जाएगा, हाँ 3 तो कर लीए, फिर कितना आ गया 60 44 अपॉन 30। इनू सॉल्व करके देख लो, जिन्ना साढ़े को आएगा आंसर दैट वुड बी इन दिस मच सैकेंड्स। आ साढ़े को आंसर जोड़ा आ चुका, इनू पॉइंट्स लिखना तो वैल एंड गुड, नहीं लिखोगे तो भी तो छड़ देना सी। डन। मेरा मेन एम आ भी वी कैन फाइंड टाइम, इतों टाइम पीरियड भी लभ सकते आप। नैक्सट साढ़े कोल प्रॉब्लम आ जाए तो मैं सॉल्व किया वैसे इतने इट कम्स आउट टू बी 0.02095। इस तरह कैलकुलेटर तो आ गया तुहाडे कोल। अच्छा एक गल होर आप देख लीए थे, अगर कैलकुलेटर तो करांगे तो यह साडा रिलेशन इस तरह का आएगा। फिर फरदर की होगा साडे कोल, असीं की पढ़िया सिग्नीफिकेंट फिगर्स, अगर वो भी गल याद रखीए की कहते सी किनिया चाहिए ने घट्टो घट्ट साडे कोल 2 सिग्नीफिकेंट फिगर्स रह सकदियां जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होए। एस केस किनिया साडे कोल 2, इत्थे 1 साडे को आ रही, इत्थे किनिया 2, तो असीं किन्नी रखियां याद, तो कि आ सकता कुछ बच्चे अगर ये लिख देंगे 2 1 तो वैल एंड गुड, कुछ बच्चे अगर 0.2 भी लिख दें तो भी ठीक है। गल समझ आ नहीं लिखनी,
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਦਰ 0.21 ਔਰ ਇਸ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो मैं प्रेफर करूँगा दिस वन। So this one would be the answer. This is the time taken by the body to complete one revolution and this is called time period. So time period कुछ नहीं है, बॉडी ने पूरा चक्कर लगाने च कितना टाइम लगाया। सेम बॉडी की ही गल कर रहे हैं। नैक्सट प्रॉपर्टी देखिए, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है तुसीं लभ सकते हैं। फिर याद करो की फार्मूला सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल, ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। दिस बॉडी इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चक्कर लगा रही, उस केस की कह रहे हैं आप, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए फोर्स दैट कीप्स द बॉडी इन ए सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। डन। एंड द एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद दिस फोर्स, इस फोर्स करके जी ये उपर एक्सेलरेशन लग रही है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन्हों आप ए सी ने डिनोट करता सी। सोल्यूशन सेम उसी तरह ही की लिखना, आर इज इक्वल टू मैं लिखता सीधा ही 0.5 मीटर, कन्वर्ट करता मीटर च, वी इज 15 मीटर पर सैकेंड। ए सी की है, ए कह लो ਜਾਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ए सी, याद रहे भी इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स की सी फार्मूला वी स्केयर अपॉन आर। देखो की आया सी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्केयर, ज़्यादा देता बच्चों याद, एम वी स्केयर अपॉन आर, ये साड़ी है सेंट्रीपिटल फोर्स। डन। ये चो मास असीं छड्ड दी, की रहेगा वी स्केयर अपॉन आर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वैल्यू फिल कर दिए, वी स्केयर कितना है 15 इंटू 15, नीचे 5, डेसिमल का 10 ऊपर चला गया, इट कम्स अप टू 450 दिस मच। 450 ये यूनिट की होंगे, वाट आर यूनिट्स ऑफ दिस एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यूनिट आएंगे इन्हों के। हाँ देखो प्लीज़ की यूनिट होंगे ने फोर्स के, मीटर पर सैकेंड स्केयर। वेलोसिटी दे मीटर पर सैकेंड स्केयर। सो फिर मैं कह रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहे, एक आती एंगुलर एक्सेलरेशन, वो दूसरी चीज़ हैगी है। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई साडे कोल, दैट इज डीलिंग विद द एंगुलर मूवमेंट डिसप्लेसमेंट, एंगल के नाल चलती पई है, उन्होंने कहने उन्होंने डिनोट करते आप एल्फा के नाल, डी ओमेगा अपॉन डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक ही चीज़ साडे कोल एक साडे को आती है लीनियर जी साडे को एक्सेलरेशन, अगर बॉडी तेज चले तो ये तो यूनीफॉर्म स्पीड तो है, अगर बॉडी तेज चले तो देयर वुड बी एन एक्सेलरेशन अलॉन्ग दिस साइड अलॉन्ग द टेंजेंट, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। पर असीं कहड़ी गलते पे हैं, दैट एक्सेलरेशन विच इज चेंजिंग ओनली द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वह फार्मूला से किया सी वी स्केयर अपॉन आर। तो वैल्यू फिल करतियाँ, यूनिट देख लेना मीटर पर सैकेंड स्केयर। सेम कह रहा लिखा रहती है, इत्थे कह इफ मास ऑफ बॉडी इज 2 किलोग्राम, क्वेश्चन आ गया गल होर ऐड करती, या बॉडी है मूव कर रही है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस 50 सेंटीमीटर, स्पीड गिवन है, मास गिवन है, असी की फाइंड करना सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो देख लो न्यूमेरिकल किस तरह सेम वैल्यूज़ तो घूम के आए दे गए। तो की याद चाहिए बेसिकली फार्मूला। तो की है सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला mv² अपॉन r। तो कुछ नहीं होने असी कीता सी इत्थे बस 2 आए ना 15 आ वैल्यू फिल की 5 डेसीमल 10 ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा मेरे ख्याल 900 यूनिट्स क्या आएंगे दे फोर्स एक यूनिट देने न्यूटन। तो 900 न्यूटन इज सेंट्रीपिटल फोर्स ये साढ़े को आ चुकी है। सो आ देख लो असी सारा ही देख लिया एंगुलर वेलोसिटी किस तरह फाइंड करनी टाइम पीरियड देख लेना फिर असी की देख लिया एक्सलेरेशन बारे सेंट्रीपिटल एंड दैन सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी नैक्सट प्रॉब्लम ट्राई करिए असी। हाँ जी एट व्हाट एंगल must a track with a band of 200 meter be banked for safe running of cars at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी क्वेश्चन देख लो प्लीज़। एट वाट एंगल इट मीनस कुछ एंगल फाइंड करने की गल हो रही है। मस्ट बी ए ट्रैक विद ए बैंड ऑफ आ वैल्यू गिवन है बैंड दी इट मीनस रेडियस इज गिवन बी बैंक्ड फॉर सेफ रनिंग ऑफ कार्स एट स्पीड ऑफ दिस। सो देखिए की गिवन सानू गिवन एक रेडियस ऑफ ट्रैक जोड़ा बैंड दैट इज 200 मीटर वेलोसिटी इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर। असी फाइंड की करना बैंडिंग एंगल सॉरी बैंकिंग एंगल किस एंगल ते जी रोड्स बैंक कल असी पढ़िया सी लास्ट लैक्चर च आ स्मूथ रोड है बट एट द टर्न्स टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स वी रेस द आउटर एज ऑफ द रोड बाय सम एंगल दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड दिस कॉल्ड बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड। ये असी एंगल फाइंड करना भी कितना एंगल ना रोड द आउटर साइड जोड़ा वा उन्होंने आप अप कर दिता है। तो थीटा फाइंड करना इस जगह तुम हुण साड़ी प्रॉब्लम आ रही है ये यूनिट आ गया साढ़े को ऐसा ही ये किहड़ा यूनिट है तो इनू कन्वर्ट कर लिए पहला से मीटर सैकेंड। हाँ जी 1 किलोमीटर किन्ने मीटर होणगे ये भी एक मैथड आ डायरैक्टली असीं कन्वर्ट कर लेने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो दूसरे ते जो जो तुसीं प्रैक्टिस करोगे तो तुहानूं समझ आएगी। आवर किन्ने सैकेंड होंदे ने 3600 सैकेंड। तो की देखिया ये दो कैंसल इधर 2 आ जाएगा सो 20 मीटर पर सेकेंड देख लो प्लीज़। सो दिस वेलोसिटी ऑफ 72 आर किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट्स टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो असी फाइंड की करना फरदर दिस थीटा इज टू बी फाउंड ये असी फाइंड करना। तो की रिलेशन याद करो की सी चाहे बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट सी चाहे बैंकिंग ऑफ रोड्स रिलेशन ये सी टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर जी। टैन थीटा कितना आ गया सारिया वैल्यूज फिल कर दिए वी स्केयर 20 इंटू 20 आर कितना आ रहा साढ़े कोल आर इज 200 मीटर
फर्दर हाँ हाँ देखो की गिवन है जी जी मैं तुहाडा काम आसान करदा लैट सॉरी इत्थे गिवन होए कोई पेपर च आ जांदा बच्चे आसानी वास्ते जी इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्केयर 9.8 तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपलिसिटी करने वास्ते किसी टाइम ਜਿਹੜੇ बोर्ड वाले ने वो पेपर च वैल्यू जी की 10 मीटर पर सैकेंड स्केयर दस देंगे ने तो जी की वैल्यू 9.8 ना लो इतने 10 लै लो ਤੁਹਾਡਾ काम आसान हो जाएगा तो की आ जाएगा साढ़े को देखो वी स्केयर अपॉन आर जी आ दो कैंसल हो रहे साढ़े को तो 2 अपॉन 10 तो 0.2 tan थीटा कम्स आउट टू बी 0.2 हुण इस तो अगे जाता अगर tan इनवर्स फाइंड करना है अगर नहीं करना तो साढ़े वास्ते इनाफ आ दिस इज द वैल्यू अदरवाइज इसका tan इनवर्स लभना पएगा वो फिलहाल तुम छड्ड दो करन नूं वो तुहानूं मैथमैटिक्स दसणगे इनवर्स वाले जे tan थीटा का इनवर्स किस तरह फाइंड करना फॉर द टाइम बिंग ये देख लो कि tan थीटा की वैल्यू असीं लभ लई 0.2 देख लो सारी वैल्यू फिल करके असीं देख लिया वी का स्केयर 20 आ चुका वा इधर आर के ना साढ़ा 200 मीटर फिल करता जी की वैल्यू पर 10 लै ली तो tan थीटा कम्स आउट टू बी 2 अपॉन 10 0.2 सो ये असी वैल्यू फाइंड कर ली है नैक्सट देखिए सिमिलर क्वेश्चन आ जाता बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट से आ सकता फोन करके साइकिलिस्ट से ये साइकिलिस्ट इज मूविंग विद a velocity of 20 मीटर पर सेकंड if he turns towards sharp circular bend of radius 40 meter then by how much angle from the vertical he has to shift himself along with cycle to pass bend safely फिर सेम गिवन की है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सैकेंड स्केयर तुहाडा काम आसान करने वास्ते जी की वैल्यू नहीं देती सानू तो आ क्वेश्चन देखने च काफ़ी लंबा हो गया ना बड़े सेंटेंसेस आ चुके हैं पढ़ के देखिए साइकिलिस्ट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सैकेंड एस वेलोसिटी ਨਾਲ साइकिलिस्ट मूव कर रहा इफ ही टर्न्स टुवर्ड शार्प सर्कुलर बैंड ऑफ रेडियस कितना साडे कोल 40 मीटर रेडियस गिवन है दैन बाय हाउ मच एंगल फ्रॉम द वर्टिकल वाला एंगल बनता सी दैट इज द एंगल ऑफ बैंडिंग ही हैज़ टू शिफ्ट हिमसेल्फ अलॉन्ग विद साइकिल साइकिल के नाल ही वो बैंड कर गया अपनी साइड पर सो दैट ही मे पास सेफली तो जी की वैल्यू तुहानूं गिवन है तो जो गिवन है असी ये साइड पर पहले लिख लीए की गिवन सी वेलोसिटी गिवन सी 20 मीटर पर सैकेंड
रेडियस गिवन है 40 मीटर, दोनों ऐसा ही है ने। जी भी सानू गिवन है, ये ख्याल रख लेना कि सानू 10 की वैल्यू गिवन तो 10 ही आप यूज़ करनी जो गिवन होए। अगर नहीं मैंशनड दैन वी हैव टू यूज़ 9.8। असी फाइंड की करना एंगल ऑफ बैंडिंग, ये असी फाइंड करना। हाँ जी, की लास्ट लैक्चर डिस्कस किया सी बैंडिंग ऑफ साइकलिस्ट। जो भी असी किते सर्कल की मोशन जाना हैगा, आ मतलब बैंड साढ़े को आ चुका, जिथे भी मोड कटना वी रिक्वायर ए फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उन्होंने एसोसिएटेड एक्सलेरेशन दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। और साइकलिस्ट साढ़े को आ रहा सी मतलब स्टेट इत्थे ऐ खड़न के बजाय एक साइकलिस्ट इस तरह बैंड हो गया, अंदर टर्न लैन लगे। तो दिस एंगल मीन द साइकलिस्ट बैंड्स विद रिस्पैक्ट टू वर्टिकल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंडिंग। फिर दो कंपोनेंट आ जाते सी इस आर दे, एक आर कॉस थीटा जिहड़ा वेट बैलेंस कर रहा सी, एक जिहड़ा आर साइन थीटा आ रहा सी। दैट कंपोनेंट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हुण तुहानूं याद आ गया की फार्मूला सी। फार्मूला सिंपल हुंदा सेम, टैन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो कुछ भी नहीं, चाहे साइकलिस्ट का केस है चाहे बैंकिंग ऑफ रोड का केस है, ना ही वखरे ने बट फार्मूला की दोनों का सेम। हाँ जी, टैन थीटा वी कितना अगेन 20 आर कितना 40, ये सानू टैन गिवन है। देखो कितना आ रहा है साढ़े कोल, टैन थीटा कम्स आउट टू बी 1। बहुत ज़्यादा वैल्यू आ चुकी साढ़े कोल। सो मीनिंग है, मैं सिंपल करने की कोशिश तुहाडी जी वेलोसिटी की वैल्यूस आप चेंज कर दी है। तो की देखा भी टैन थीटा की है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, असीं फिल कर देना है वा, जिन्ना भी आंसर आए दैट वुड बी आ गया। ये तो हुण टैन इनवर्स लभ के तुसीं इहदी वैल्यू लभ सकते जी। चलो नैक्सट चलीए असीं। हाँ असीं आंसर लिख लिया। अच्छा, तुहाडे मन च क्वेश्चन आ जाए भी आह काम आसान सारा नूं पता, असीं पढ़ते रहे 10th विच भी टैन थीटा 1 किदों हुंदा जो थीटा कितना है 45 डिग्री। अगर नहीं सिंपल का आ रहा तो असीं छड्ड सकते हैं, जो असीं लास्ट क्वेश्चन च कीता सी। जो तुहानूं टैन इनवर्स लभना आ जाएगा फिर आपां देख लांगे, उदों वैल्यू लभ दिओ। फिलहाल समझण वास्ते इत्थे ही छड्ड दोगे तो तुहानूं उन्ने ही नंबर मिल जाने ने, नंबर नहीं कट्टे जाते। अगर आ जाए आइडिया भी टैन थीटा 1 है किदों हुंदा वैन एंगल इज 45 डिग्री, दैन वी राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। अदरवाइज टैन थीटा की वैल्यू लभ ली, इट मीनस आंसर साडा सफिशेंट है। नैक्सट देखिए असीं ये सर्कुलर डिस्क rotates at 120 rpm. A coin of 49 ग्राम, 49 की हेल्प आएगी दस देंगे। 49 ग्राम इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter from the center of disc. Calculate the centrifugal force acting on the coin. हाँ जी, क्वेश्चन देखो, कहता सर्कुलर डिस्क
रोटेट्स एट दिस स्पीड, आ स्पीड गिवन इन्नी स्पीड ते घूमती पई है। ए क्वाइन ऑफ 49 ग्राम इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर देखिए उपरों देख रही असी भी आ को डिस्क साढ़े को पई है, पूरी प्लेट की प्लेट है, डिस्क सारी ये घूमती पई है। कितनी स्पीड आ 120 RPM। RPM मीनस रोटेशंस पर मिनट, एक मिनट च 120 चक्कर लगा रही है। सानू पता वा अगर इतने क्वाइन रखांगे तो की होएगा, इट विल मूव अवे। क्यों जाएगा कि असी पढ़िया वा इतने किहड़ी फोर्स लगे, इन्हों किसी ने पकड़ के नहीं रखा। अगर इतने फड़ के रखा है, कि थ्रैड ने बन्या है तो इट विल कीप ऑन रोटेटिंग। बट की होएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस विच विल थ्रो इट आउट। वो असी देखना सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही है इस क्वाइन ते, जिहड़ा सेंटर तो इत्थे किते 10 सेंटीमीटर दूर असी रख दिता है। तो की गिवन है आप देख लीए। एक तो यदि सानू फ्रीकुएंसी गिवन है, तो फ्रीकुएंसी कितनी है RPM किन्ने 120 रोटेशंस पर मिनट। तो सैकंड च कितना आएगा असी लभना ना SI च। एक मिनट च कितने सैकंड ने 60। तो की आ गया साडे कोल 2 रोटेशंस पर सैकंड। तो पर सैकंड असीं की कहने आ, इहदा यूनिट किंदा हर्ट्स आया याद। हर्ट्स इज यूनिट ऑफ फ्रीकुएंसी। एक सानू फ्रीकुएंसी गिवन है, एक मास ऑफ क्वाइन गिवन है 49 ग्राम। होर की गिवन है, एक रेडियस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है कितनी दूर जिहड़ा क्वाइन पिया है, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। हुण आ दोनों सानू प्रॉब्लम है, ये भी ऐसा ही करने पैने हैं। तो 49/1000 कितना आ जाएगा 0.049 किलोग्राम। ओके, ये कितना आ जाएगा 10/100 मीटर बनाने 100 ਨਾਲ डिवाइड करना पड़ेगा 0.1 मीटर। सो एन गिवन है, एम गिवन है, आर गिवन है, पर साडा एम की है टू फाइंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ਉਹਦਾ फार्मूला की ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, इत्थों रब कर दिए। ये भी बड़ा आसान सी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरैक्शन जिहड़ी है दैट इज आपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। डिस्कस कर रहे सी लास्ट लैक्चर च। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड आ, ते अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ दैट इज आउटवर्ड। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ, डायरैक्शन जी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। सो ਇਹਦਾ अमाउंट ਲੱਭਣ वास्ते की है, तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ये है सानू होंदी mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ही है। एम सानू गिवन है, आर गिवन है, वी बारे नहीं पता। तो प्रॉब्लम आ गई साडे कोल। वी नो वी की होंदा, वी इज ओमेगा आर। आया याद रिलेशन की वी ओमेगा एंगुलर फ्रीकुएंसी तो आ गया सी। ओके डन, असी इन्हें कर लिया सॉल्व। तो एम ओमेगा²r² आ गया। एक आर ना आर कैंसल हो जाएगा, इधर आ गई असी। एक आर आर कैंसल, एफ के ना आ गया mr²। सो आ एंगुलर साड़ी स्पीड है वेलोसिटी का की रिलेशन होंदा फ्रीकुएंसी दे नाल। आया याद 2πn असी कीता सी। ओमेगा की सी असीं क्या θ/t। अगर टाइम पीरियड टी होए, टी टाइम इट मीन फॉर फुल रेवोल्यूशन, तो की आया सी 2π/t। दिस इज एंगुलर फ्रीकुएंसी। 1/t की है दैट इज फ्रीकुएंसी। सो ओमेगा नूं की ले सकते हैं 2πn। हुण इन्हें ब्रैकेट ओपन करके देखिए mr, ये क्या आएगा 4π²n²। तो कितना आ जाएगा f 4π²mrn²। देख लो कोई चीज़ मिस तो नहीं कर गया मैं। 2 का स्केयर 4π²n²। सो 4
ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਐਮ ਆਰ ਇਨ ਐਨ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੋਚੋ, ਨਾਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2πn ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਮ ਹੈਗਾ, ਆਰ ਹੈ ਐਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ 4 ਪਾਈ 22/7 ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਾਵਰ 2 ਵਾਰੀ। ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 49 ਅਪੋਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ 1000 ਸਟੈਪ ਘਟਾ ਲਿਆ ਨਾ, 49/1000। ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10/100। ਐਨ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 × 2। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਦੇਖ, ਆਮ 49 ਤਾਂ 7 ਤੇ 49 ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਗਈ ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 22 ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 7744 ਅਪਾਉਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਸੋ ਕਿੰਨਾ 0.7744, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਿਊਟਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਈਗਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਵਰਕ, ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ 10 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ 21 ਲੈਕਚਰਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਵਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।